Welcome friends to video number 12.2, that is chapter 12, second video, class 10th electricity. Today we are going to discuss our next point, that is Ohm's law. In the previous video, that is video number first, I have already discussed up to electric circuit. Today we are going to discuss next topic, that is Ohm's law. What is Ohm's law? What Ohm's law says? It says that at constant temperature, current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference across the two ends. Clear? That is, I is directly proportional to V. When I increases, V also increases, or when V increases, I also increases. That is directly proportional at constant temperature. Okay, so at constant temperature, the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference across the two ends. That is, I is directly proportional to V, or we can say that V is directly proportional to I. Clear? This implies we can write V is equal to, when proportionality symbol is replaced and some constant is multiplied, so we can write V equal to I R, where R is the constant, where R is constant, called resistance of the conductor. Resistance of the conductor. Okay, R is the resistance of the conductor. Clear? This is a formula for V equal to IR, or from this we can find out I equal to V by R, or R equal to V by I. We can make different formulas from this. Okay, about resistance we will see later, or let us discuss. First of all, experiment. Let us see what happens when I increases or V increases. What happens to I? Let us see. First of all, let us draw the diagram. Okay, take a cell, positive, negative. Ammeter is connected, positive and negative. Ammeter is always connected in series. Okay, we will take different cells, that is V1, V2, V3 and so on. You can take one switch. First of all, when we connect V1 to the circuit, you will see the reading, then after V2, then after V3 and so on. Okay, now let us see what happens. First of all, take a serial number 1 2 3. We will take only 3. Potential difference, that is V, current, that is I. Okay, first let us take cell of 1.5 वोल्ट. ओके, कहने का मतलब 1.5 वोल्ट का अगर हम बैटरी देते हैं तो मान लेते हैं 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट. ओके, सेकेंड, let us double this, that is 3.0 volt. Then as according to Ohm's law, I will also increase, and with same proportional it will become 0.2 ampere. Third, when 4.5 it will become 0.3
3 ampere, and so on. This shows that V is directly proportional to I or I is directly proportional to V. That means one increases, the other also increases. कहने का मतलब अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा. अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है ना. जैसे हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ अगर खींचने के लिए बोल दे एग्जाम में, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, करेंट, है ना. इधर करंट ले लिए, दैट इज आई, है ना. इधर भी ले लेते हैं, है ना. चलिए नीचे हम जो 1.5 का डिफरेंस ले लेते हैं. 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 एंड सो ऑन. सॉरी 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and so on. Okay, here we will take 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 and so on. First, when V is 1.5, V is 1.5, I is 0.1, 0.1, it will come here. Okay. Second, when V is 3, V is 3, I, that is 0.2. When V is 4.5, I is 3, 0.3. And when we draw the line, it will become a straight line, है ना. कहने का मतलब ओम्स का जब भी अगर हम लोग देखते हैं ग्राफ ओम्स लॉ के अनुसार V और I का ग्राफ, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा. क्लियर. ये आपका ओम्स लॉ का पूरा हुआ. तो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो करंट जो फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V, दैट इज I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I. दिस इम्प्लाइज V इक्वल टू IR, जहाँ R कोई कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं. ठीक है. उसके बाद ग्राफ अगर देखें तो एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ते जाता है इस ग्राफ के अनुसार. देखते हैं तो क्लियर. चलिए एरो, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, है ना. रेसिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस, है ना, इट इज द हिंड्रेंस और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. दैट इज करंट को फ्लो करने से रोकता है, बाधा पहुंचाता है ना. यानी कि हम लिख सकते हैं इसको क्या, इट इज द हिंड्रेंस और अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट. करंट को फ्लो होने से रोकता है ना. इसका ऐसा यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम. रेसिस्टेंस इज OHM, ओम, और सिंबॉलिक फॉर्म ओम. ओके. चलिए नाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज 1 ओम. देखो क्वेश्चन, डिफाइन 1 ohm. Okay, how can we define 1 ohm? We know that R, we know that V equal to IR, then R equal to V by I, है ना. ऐसा यूनिट का फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ओम. इसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर. अब इसको 1 ओम को डिफाइन करें, 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, तब ना 1 ओम आएगा. 1 रहेगा, 1 वोल्ट. और अब इसको डिफाइन करना है तो क्या है, तो 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. रेसिस्टेंस है ना, ऑफ द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, है ना, इज अप्लाइड टू द इंड्स. अगर हम दोनों इंड पे एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और जो करंट फ्लो करता है दैट इज 1 एम्पियर, है ना, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड थ्रू द इंड्स, देन द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, देन द रेसिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम. क्लियर. चलिए लिख देते हैं, एक बार देख लीजिएगा. 1 ओम, ओम क्या है, इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. रेसिस्टेंस ऑफ द
ये ऐसा यूनिट में लिखे हैं फॉर्म में। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt is applied to its end and then a current of 1 ampere flows through the circuit. Okay, this is called 1 ohm. Okay. Next topic is what are the factors? Factors affecting the resistance of the conductor. यानी कि किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस इफेक्ट पड़ेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ आर का दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। यहाँ आर इक्वल टू वी बाई आई हुआ था ओम्स लॉ से, यहाँ हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं। कभी भी यानी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। और एक चीज़, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स अगर तार मोटा है, एरिया उसका तार का ये जो चौड़ाई है, ये मोटाई जो है अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यानी मोटा वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, पतला वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर दोनों को कंबाइन कर दें फर्स्ट और सेकंड का, तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, तो आर जो होगा प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होगा। अब फिर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो फिर यहाँ कोई कांस्टेंट जुटेगा। यानी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल क्या है, कांस्टेंट होता है रो एल बाई ए, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। कांस्टेंट होता है हर कंडक्टर का। ठीक है, एक दो का लिख देंगे किसका कितना होता है। रो इसको क्या कहते हैं, अच्छा हिंदी इसी में भी लिख देते हैं, RHO। ओके, ये है आपका रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का एक रेसिस्टिविटी होता है ना, पर मीटर पर स्क्वायर पर मीटर लेंथ में, और पर एरिया जो है पर मीटर स्क्वायर पे जितना रेजिस्टेंस होता है वो उसका रेसिस्टिविटी कहलाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर। चलिए अब इसी को हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दें। आर किस पे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, है ना। यानी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन इन्वर्सली है ना। और क्या पे, फिर यहाँ टेम्परेचर पे भी होगा। देखे थे कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, फिर रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। थर्ड, उसके बाद फिर नेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी किस चीज़ का बना, रेजिस्टिविटी अलग अलग मेटल्स या का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। तो किस मेटल का बना हुआ है, जैसे सिल्वर का बना होगा तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, है ना। आयरन का बना होगा तो उसका अलग होगा, यानी रेजिस्टेंस चेंज। अगर ये रो चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। चलते इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, फर्स्ट, ये एक फार्मूला हम लोग को हो गया, है ना, ये भी एक फार्मूला हो गया। चलिए, तो सबसे पहला है लेंथ। द लेंथ ऑफ द वायर, या कह सकते हैं कंडक्टर, है ना। तो कैसे, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू is directly proportional to length, है ना। दैट इज if length increases, resistance
ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर। पहला। सेकेंड जो है हम लोग क्या देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तार की मोटाई, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस पे कैसे, इन्वर्सली, है ना। तो रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। थिकर, अगर मोटा वायर है, थिकर वायर हैज लो रेसिस्टेंस देन थिनर वायर, थिनर वायर। यानी कि अगर मोटा है ना, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, लो रेसिस्टेंस। अगर पतला है तार तो उसमें क्या होगा, हाई रेसिस्टेंस। क्लियर। चलिए डायग्राम से बताएं। चलिए थर्ड क्या बोला, टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो टेम्परेचर डायरेक्टली है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, that is if temperature increases resistance also increases and vice versa, that is if decreases resistance also decreases. Okay. Fourth, हाँ, नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी किस मेटल का बना हुआ है ना, मेटल है या नॉन मेटल है, उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो किस तरह से, तो मेटल्स जैसे कि मान लेते हैं, मेटल्स लाइक कॉपर ले लेते हैं, है ना, सिल्वर ले लेते हैं, अल्मुनियम ले लेते हैं, है ना, एक्सेट्रा। चलिए कुछ ही लेते हैं। हैज़ क्या होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस, हैज़ वेरी लो रेसिस्टेंस। इसमें रेसिस्टेंस कम होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग में, है ना। हैज़ लो रेसिस्टेंस। वेरएज, जबकि हम लोग देखें कुछ ऐसा देख लेते हैं, वेरएज देख लेते हैं, नाइक्रोम, जो आपका हीटिंग कोयल बनता है, नाइक्रोम है बल्ब का, टंगस्टन है, चलिए एक्सेट्रा, हैव हाई रेसिस्टेंस, इसीलिए इसको हीटिंग एलिमेंट बनाने का यूज़ किया जाता है ना। चलिए तो ये तो हुआ। उसके बाद हम लोग इसमें हो गया रेसिस्टेंस, हो गया, एक रेसिस्टिविटी देख लेते हैं, चलिए इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टिविटी। तो जैसे बताएं कि 1 मीटर वायर में अगर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें जो रेसिस्टेंस होगा दैट इज इस रेसिस्टिविटी, यानी कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ कितना मीटर, 1 मीटर लेंथ, और कितना क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड, जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टिविटी, यानी उस वायर का रेसिस्टिविटी होता है, इट्स रेसिस्टिविटी, है ना। यानी कि अगर देखें वायर का, अगर लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ
है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है ये, है ना। तो इसका जितना रेसिस्टेंस होगा वो उसका रेसिस्टिविटी कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ऐसे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक चार्ट बनाया हुआ बहुत सारा, है ना। चलिए सिल्वर का ले लेते हैं। तो सिल्वर का क्या होता है, रेसिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी का है ना, नहीं लिखे हैं, चलिए ये ऐसा यूनिट है, याद रखिएगा। दूसरा है आयरन का ले लेते हैं। तो सिल्वर से इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसका है 10.0 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसी तरह और भी होगा। एनसीईआरटी का बुक पेज नंबर क्या है, 207 में दिया हुआ है ना। तो एक लास्ट छूट गया था, ऐसा यूनिट भी लिखता है, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर या OHM METR मीटर। क्लियर। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फिर भी यहीं तक रहने देते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।